Human resource is the most valuable resource. People and values to me are the most critical thing that determine the future of any enterprise and sustainability of any enterprise. Human touch and care is another very important thing, because at the end of the day, I think we are all emotional creatures. उनके साथ बर्ताव भी इसी रूप में होना चाहिए कि उन्हें अपनापन महसूस हो. We are very fortunate to have this feeling of belonging and togetherness. This has been possible through relationships built on trust, caring, and mutual respect. But being fair to everybody, whether he is your supplier, whether he is your customer, whether he is your worker, any stakeholder, you would not like to unjustifiably deny them of whatever is due, or let us say any treatment which will be unfair to them. But at least if it comes to your notice, you try to see that a person doesn't get an unfair deal. I think basically a group like Dalmia stands for professionalism, and that is a distinguishing factor, because most sugar companies are pure sugar companies, and Dalmia's having a larger portfolio, they actually straddle different industries, and therefore their professionalism is of a different degree. I think the most important thing in sugar is to actually give the farmer the confidence that he is getting paid for the right quantity of cane and quality of cane, and that there is no ulterior motive in the relationship between the farmer and the industry. And professional groups strive for this. I think the most important thing is to focus on product quality as far as the customers are concerned. Take care of your distribution channels to ensure that available sugar is there in the market at the right time. Most important, I think it's a question of building a brand and building a confidence that if they buy sugar from a company like Dalmia's or DSCL, it means that the product quality is ensured, and therefore there is confidence among the consumers. डालमिया जी से हम लोग के रिलेशंस भी अच्छे थे, हम लोगों के फैमिली रिलेशंस हैं बहुत पहले से. तो जब इन्होंने शुगर में आए, इन्होंने जब नया फैक्ट्री लगाया, तो फिर हमने इनके साथ हम उस दिन से इनके साथ जुड़ गए. फिर हमने वहीं से शुरू किया है चीनी शुगर का काम, डालमिया से ही, और आज हम उसके बाद DSCL और बलरामपुर दोनों से जुड़े हुए हैं. और भी उन्होंने हमेशा से हम लोगों पे भरोसा किया, और हमने कभी उन्हें उसके लिए कभी जी शर्मिंदा नहीं होने दिया. अगर आप देखें तो इधर अपने जो हमारा बेल्ट है इधर सेंट्रल यूपी का, यहाँ पर अगर ब्रांडिंग को शुरू किया है शुगर में तो डालमिया ने ही किया है. इसके पहले तक हम लोग की चीनी सिर्फ वो शुगर M और S ग्रेड कह के बिकती थी, कभी भी वो डालमिया या रामगढ़ के नाम से नहीं बेची जाती थी. मैं शुगर एजेंट हूँ डालमिया चीनी मिल से सिंस 1994, since inception. Relationship is cordial, we work as a family, and we are associated with them for past 14 years. And we are serving them, you can say, like every input what we are giving them, they are accepting it. Dealing with Dalmia is tension-free dealing, we can say. Well, any problem, anything, it is sorted out within 24 hours. Nothing has been pulled or prolonged like that कि you should act like that, और कुछ वैसा नहीं होता कि मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम रही हो आगे कभी पीछे में या कभी इस तरह की. From one factory they have become three, they have put down 3 factories. This is the growth we are seeing. मैं ट्रांसपोर्ट का कार्य करता हूँ. आपके चीनी मिल में गन्ने की ट्रांसपोर्टिंग करता हूँ, शक्कर की जो रेग लगती है उसकी ट्रांसपोर्टिंग करता हूँ, जो कोयले का रेग लगता है उसका भी काम करता हूँ. जो भी रेट तय हैं उन रेटों का पेमेंट जो बनता है वो टाइम से मिलता है, उसके लिए कोई शिकायत नहीं. मैं लोकल सीतापुर का रहने वाला हूँ, तो सीतापुर काम करना चाहता हूँ. दूसरी बात यह है कि जब से मैं यूनिट से जुड़ा हूँ तब से हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई. हमारा काम ठीक चलता है और इसलिए हम कहीं दूसरे मिल नहीं गए. हम तो खेती का काम करते हैं, कृषि, उसमें गन्ने की ही प्रमुख खेती होती है हमारे यहाँ. जब से इस चीनी मिल में जुड़ा तो यहाँ का भुगतान जो है बहुत अच्छा रहा. समय पर भुगतान हुआ और पर्चियाँ जो है वो समय पर निर्गत हुई.
तो सारे क्षेत्र की डिमांड रही कि हम डालमिया जी की चीनी मिल को ही गन्ना सप्लाई करेंगे, क्योंकि कभी भी हम लोगों का पैसा यहाँ डूबा नहीं। हम लोग तो आभारी हैं इसलिए, क्योंकि सर इसके पहले जो है हमारे यहाँ जब कोई 4 पहिए की गाड़ी निकलती थी तो लोग देखने आते थे, यही 94 के पहले। और आज तो ये देन है कि टोटल जो है हर गांव में ट्रैक्टर, हर घर में ट्रैक्टर, बैलगाड़ी का नाम ही नहीं रह गया और सारी ट्रालियां हैं, 4 पहिए के वाहन भी 2-4 हर गांव में हैं। तो ये तो गन्ने की ही देन है। बहुत अच्छा रहा हमारे क्षेत्र में जो ये उद्योग लगा। मैं 93 से काम कर रहा हूँ, जब यहाँ प्लांट ये लगा है। स्टार्टिंग मेरी यहाँ सप्लाई से हुई, बगास सप्लाई किया, जो प्लांट मतलब बॉयलर में जलाने के लिए इनको बगास चाहिए थी, उसको सप्लाई किया मैंने 93, 94। 95 में जब इनके पास बगास सरप्लस हुई तो परचेज़ किया मैंने इसको, परचेज़ करके, और पेपर मिलों में सप्लाई का काम था मेरे पास। और अब इस 5 सालों से 6 सालों से बगास फीडिंग का भी काम हमारा है। जो बॉयलर में बगास जलाते हैं तो ट्रैक्टर हमारे लगे हुए हैं। हम तो घर जैसे काम करते हैं यहाँ पर, जैसे मेरा अपना निजी काम हो। मैं एज ए ट्रांसपोर्टर, एज ए सप्लायर कभी काम नहीं किया मैंने। न मेरे साथ एटीट्यूड है मैनेजमेंट का कि सप्लायर हम हैं, या हम मैनेजमेंट के आदमी, मतलब स्टाफ के ही आदमी नज़र आते हैं यहाँ से लेकर हेड ऑफिस तक। मेरा कोई नुकसान हो रहा है या काम में फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसको कंपनसेट करते हैं। ये पेमेंट के बारे में इनका गुडविल एक पूरे इलाके में इनका। जब से चीनी मिल बनी है हम दोनों का एक ही साथ रजिस्ट्रेशन हुआ है। चीनी मिल का निर्माण हुआ 94 में चालू हुई, 94 में मैं चेयरमैन बना। जो किसान यहाँ का गन्ना बोता है, वो चीनी मिल को जो गन्ना सप्लाई होता है उसके लिए एक माध्यम बनाया गया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए ही हम गन्ना किसानों का चीनी मिल को देंगे और चीनी मिल हमारे द्वारा पैसा दे करके, हमारी सोसाइटी को पैसा दे करके किसानों को वितरण करेगी पैसे का। तो हम लोग मीडिएटर हो गए चीनी मिल और किसानों के बीच के, ताकि दोनों का हित बना रहे, किसी का अहित न होने पावे। जितनी शुगर में मिठास है उससे कहीं मिठास हमारे संबंधों में है, किसानों के और चीनी मिल के संबंधों में। जितना बढ़िया पेमेंट हमारे रामगढ़ का फैक्ट्री का है ऐसा कहीं नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों का संबंध बड़े अच्छे हैं, यहाँ के अधिकारी भी अच्छे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याओं का निदान समय से वो कर दें। 94 में जब मिल चालू हुई है, 94-95 में, उस समय हमारा चूँकि अधिकतर इलाका भोर का इलाका है जहाँ मूंगफली हुआ करती थी, सिंचाई के साधन कम थे, लोग अधिकतर मूंगफली या गेहूँ बोते थे और कुछ इलाके में गेहूँ और धान बोते थे जहाँ सिंचाई साधन पर्याप्त थे या नहायक सिंचाई साधन थे। लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम अपने पैसे को एक बार में देख पाते कि हमने 1 लाख का गेहूँ बेचा है या 2 लाख का धान बेचे हैं या कोई मूंगफली बेची है। इतना किसी किसान के पास एक बार किसी किसान ने पैसा नहीं देखा था। जब से गन्ना मिल लगी, लोगों का पैसा एक मुश्त मिलना चालू हुआ तो किसी को लगा हमने 20,000 का बेचा, किसी ने 50,000 का बेचा, किसी ने 1 लाख का बेचा, तो लोगों को लगा कि मेरे पास कुछ पैसा है, मैं भी कुछ हूँ, किसान की भी कुछ हैसियत हो गई। और आप यकीन मानिए इस क्षेत्र का जितना विकास हुआ है उसका 90% श्रेय इस डालमिया ग्रुप को जाता है, इस चीनी मिल रामगढ़ को जाता है, 10% विकास अदर्स को जाता है। काफ़ी से लोग यहाँ पर हमारे जो बेरोजगार घूम रहे थे, जो 2,000-4,000 रुपये के लिए घूम रहे थे इधर नौकरी करते हुए, उन्होंने मेहनत करना चालू किया अपने गांव में खेत पर। कंपटीशन में आ गए कि मैं 1 एकड़ में 50,000 का 60,000 का गन्ना पैदा करूंगा। तो काफ़ी हद तक इस बात के लिए ये श्रेय जाता है कि वो नौजवान जो मेरा बेकार घूम रहा था आज लग गया है उसमें काम में, और आसपास चीनी मिल के आसपास भी अपना कोई रोजगार कर लिए हैं। कुछ लोग यहाँ भी नौकरी पा गए हैं। तो बहुत बड़ा योगदान रहा, युवाओं पर फर्क पड़ा। मैं बड़ा आभारी हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ के समस्त किसान आभारी हैं इस डालमिया ग्रुप के कि जो उन्होंने शुगर फैक्ट्री यहाँ ऐसे इंटीरियर में लगाई जहाँ कोई साधन नहीं था,
सड़कें तो गवर्नमेंट ने बनवा दिया, लेकिन हमारा जो स्टेटस था, जिनके पास साइकिल नहीं थी, आज मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, मारुति ले घूम रहे हैं, गांव-गांव में कारें घूम रही हैं। ये देन केवल इस गन्ने की वजह से हुई है।